Okay, fine. Hello, don't shout please. So this is unit 4. We were discussing regarding the pyridine. So we have saw the 5-member heterocyclic compound. What you have studied? Pyrrolfuran and thiophene. And their preparations, chemical reactions, uses and physical properties. This much we have studied. Okay. And why electrophilic substitution reaction takes place in there? Yes or no? That we have discussed. So today, and we have also studied in the last class the preparation of pyridine. So in gist we will repeat what is pyridine. Pyridine is, see, in pyridine there is a nitrogen. Yeah, so nitrogen is there. So this, it indicates it's a basic compound. What is that? It's a basic compound. Okay, you must remember this one, please. Huh? Pyridine is a what? Basic compound. Why it is basic? Nitrogen. Nitrogen is present. Okay. Please remember that one. Aja, come. Fine. Okay. Next, you know the structure. So synthesis of pyridine. What I said, to synthesize pyridine, what are the different parts? क्या चाहिए हमें? एसिटिलीन. तो ये देखो, ये दो डबल बॉन्ड्स है, तो ये दो डबल बॉन्ड्स हमारा will behave as a acetylene. Okay, 3 double bonds, when they will fuse, so it forms 2 double bonds. And with HCN, this is the HCN part. Yes or no? So they will fuse in red hot tube and form the pyridine. Fine. We have discussed this thing. Next part is your next preparation was your from pyrrole. So pyrrole, you see, pyrrole is a 5-member. So and pyridine is a 6-member. So we need a 1 carbon. So for 1 carbon, reactant would be your methylene chloride. Okay, this is known as DCM. And in presence of a base and heat, it will cyclize. So it's a ring expansion reaction. What is this? Ring expansion reaction. Next, pyridine, see. So pyridine, if you see, in pyridine, how many carbons are there? 1, 2, 3, 4, 5. So this is 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 carbon. And as nitrogen is there, so they have taken ammonium chloride, diamine chloride. Okay, NH3 plus Cl minus, NH3 plus Cl minus. So this is pentamethylene diamine hydrochloride. So if you will heat it, so from here ammonium chloride will be removed and it will form pyridine. It is a cyclization reaction. तू इधर आ बैठना बेटा, सामने बैठ जा. तू हाँ. Yeah. This is pyridine. Come front क्या तू चलो. This is your pyridine. Okay. So pyridine, this is a saturated compound. So to make unsaturated, dehydrogenation is needed. So concentrated H2SO4 with heat, it will remove the hydrogen and it will form unsaturation. Okay, you remember this thing. Dehydrogenation करना तो concentrated H2SO4. Okay, you remember this part. Then from the tetrahydroporphyryl alcohol also. So this is porphyrin. Porphyryl matlab oxygen is there. So the reagent has to be ammonia. And here CH2 is there. So total 6 carbon with ammonia heat in presence of aluminium oxide. So it will give the pyridine. Okay. Next is we have taken a 6-member pyridine derivative, that is 3-carboxypyridine, and heat it calcium oxide. So it will form pyridine. You may write down like this, or you will go back. Picoline means 3-methylpyridine. If you are not remembering beta picoline or picolinic acid, you may remember in that way. 3-methylpyridine. You have to see, this is not your entrance exam. This is a semester exam. So long question will be asked. So you have to prepare for 5 mark or 10 mark question. So you have to write it in your exam. So you can write down 3-methylpyridine or beta picoline. When it will be oxidized, so it will form K2Cr2O7 is oxidizing agent in presence of ACid. Okay, so it will form CH3 to COH. You studied RCH3 becomes RCOH. Okay, this is K2Cr2. Then COH को हम कैसे निकालते हैं? हमेशा याद रखना, COH will be just heat in presence of calcium oxide. Okay, ये हमने पढ़ा था. Next, okay, Hans synthesis was there. Hans synthesis, the product was this. What? The product was Hans synthesis. This is the product of Hans synthesis. Right. So this is what? What are the name? 2
4 6 methyl. Yes or no? 2 4 6 methyl and trimethyl, sorry, yes, and then 3 5 ethyl carboxy. क्या? ethyl carboxy. Okay, हाँ, pyridine. Yes or no? ethyl carboxy pyridine. You can see. Then you heat it. So this total group will be removed, and it will. This is a next work. But in hand synthesis, this is the product. Remember, hand synthesis, this is the product, and these are the further steps, and the end product is this. Yes, no? Okay, you remember this thing. So how you can remember the reactant? I have make you understand. Last class, the synthesis part, that for synthesis, this is a reagent, right? And this is a reagent. Yes, this is the 2 mole हो गया, beta keto ester, okay? And this CH3 becomes CH3CHO, and this NH become ammonia. So you remember this structure only, right? You remember this structure, then you can remember. Fine. Then goes your Diels-Alder reaction. Diels-Alder, dyne and dienophile reaction. See, this is the dyne reaction. Dyne matlab 2 double bonds, and this CN, C triple bond N. Okay, this means C triple bond N. So this is a dienophile, and this is a substituent. Yes or no? So this substituent is this. When it will dyne and dienophile react, 1,3-butadiene, it forms 2-cyanopyridine. Okay, understand? And Guarese reaction involves the condensation of beta diketone with sodium derivative of cyanoacetamide. Okay, so they will form what? 3-cyano-4,6-dimethyl 2-oxyopyridine. In exam you have to write down 5 to 6, that will be enough, jitna yaad hai. Okay, next today the freshly we have to study what are the chemical reaction or chemical properties. So please note it down in your copy. Okay, so see, what is the structure of pyridine? This is the structure of pyridine, right? This is the structure of pyridine. Okay, so where electron is situated? Outside. In case of pyrrole, where electron is situated? Remember this thing, okay? This is a comparative way you can remember, okay? So, and in pyrrole, the lone pair electron is delocalized for aromaticity. Aromaticity satisfy करने के लिए this electron takes part in the sextate formation. है ना? Electron will be delocalized. You understand or not? Okay, हाँ. Like your benzene जो गोला दिया गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसके पास वो इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है. तो जब एसिड हम देंगे तो इतना ये रिएक्टिव नहीं होता है, बिकॉज इट इज ए बेस. नो, पायरोल इज बेस, नाइट्रोजन इज देयर, बट एज इलेक्ट्रॉन इज इनसाइड, तो एसिड देते हैं तो इतना रिएक्टिव नहीं होता है. हाँ या ना? मान लो 1 लाख रुपया अभी तुम्हारे जेब में पड़ा है और 1 लाख इसका एफडी में पड़ा है, तो कौन ज्यादा खर्चा कर सकता है तुरंत? यू अंडरस्टैंड? नो, तो ऐसे ही बाहर अगर पैसा पड़ा है, मतलब नाइट्रोजन, ये हाईली रिएक्टिव. रिमेंबर दिस ट्रिक कि किसका इलेक्ट्रॉन बाहर पड़ा है. तो जब हम एसिड डाल देंगे, क्या, इफ यू विल ऐड एसिड, तुरंत क्या बन जाएगा? पिरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड. फाइन, व्हाइट पीपीटी बन जाएगा. जैसे दूध में नींबू निचोड़ दो दही बन जाता है ना, ऐसे ये बन जाएगा. ये तो ब्राउन कलर का लिक्विड या व्हाइट कलर का लिक्विड होगा पिरिडिन. इट इज हैविंग ए वेरी बैड स्मेल, अनप्लीजेंट ऑर्डर. ये जेंट्स को स्टेराइल कर देता है. जेंट्स का जो टेस्टिकल फॉर्मेशन होता है, स्पर्म फॉर्मेशन, कोई बंदा अगर पिरिडिन में लॉन्ग टाइम वर्क करेगा तो ही बिकम्स स्टेराइल. ओके, सो इट्स इतना बैड है ये केमिकल्स. So always whenever you use the mask. Okay, pyridine is miscible with water. It's water soluble. Also it's soluble in the organic compound. This is the little properties. Basicity. So when this is a base, तो एसिड डालेंगे तो क्या बन जाएगा? pyridinium, pyridine हाइड्रोक्लोराइड लिखा है, pyridinium हाइड्रोक्लोराइड. ओके, pyridinium क्लोराइड बोल सकते हो. Then C, तो हम इसमें अगर मिथाइल आयोडाइड डाल देंगे, क्या डाल देंगे? मिथाइल आयोडाइड डाल देंगे. ओके, मिथाइल में क्या? CH3 प्लस I माइनस, तो प्लस पार्ट कहां जाएगा?
इलेक्ट्रॉन है तो प्लस पार्ट अपना खींचा चला जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये क्या बन जाता है, pyridine मेथायोडाइड। क्या बन जाता है, pyridine। तो यू कैन डू इन योर लैब, प्रैक्टिकल में आपका जो प्रैक्टिकल्स होता है ना केमिस्ट्री में, pyridine ले लेना 2 ml, एक बार HCl दे के देखो, pyridine हाइड्रोक्लोराइड तुरंत बनेगा, 5-10 मिनट में आपका कंपाउंड रिएक्शन खत्म। ऐसे ही आप pyridine में मिथाइल आयोडाइड डाल दो, थोड़ा मिक्स कर दो, बन जाएगा pyridine मेथायोडाइड, क्वाटरनियम सॉल्ट नीचे प्रेसिपिटेट आ जाएगा, तुरंत देखने मिलेगा आपको। यू कैन फील इट, यू कैन रिमेंबर इट। ओके, तो मेरा तो प्रैक्टिकल आपके साथ नहीं है, और एल्स आई कुड हैव डन इट। आपको जो करवाता है उसको बोलना जरूर, सो ही विल हेल्प। देखो, pyridine act as a base due to the presence of lone pair of electron on nitrogen and form salt with acid and quaternary salt with alkyl halide। पहला पॉइंट लिख लिया आपने, pyridine is much weaker than aliphatic। So in exam write down the question, write down the question, which is more basic, which is more basic, pyridine versus basic, which is more basic, pyridine versus aliphatic amines versus pyrrole। ये आपका 5 मार्क का या 2 मार्क का क्वेश्चन में पूछ सकता है। ओके फाइन, सो यू सी द जस्टिफिकेशन, pyridine is much weaker than aliphatic amines because in pyridine on shared pair of electron of nitrogen is sp2 hybrid। क्या बोला, sp2 hybrid orbital, while in aliphatic amines on shared electron is sp3 hybrid। तो ये sp2 हाइब्रिड sp3 हाइब्रिड हमें क्या मतलब, बोल दिया तुम्हें रट्टा मारना पड़ेगा, इतना ही है तुमको ये जस्टिफाई। मगर तुम तो फील नहीं कर सक रहे हो ना कि बेस कैसे हुआ सर, कैसे नहीं हुआ, तो फील करना जानना है कि भाई क्यों। ओके, तो मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। देखो, since the electron in sp2 orbital are held more tightly by the nucleus than the electron in sp3 orbital, they are less available for sharing with acid। क्या बोला, the electron in sp2 orbital are held more tightly by the nucleus। क्या बोल रहा है, जो sp2 ऑर्बिटल जब फॉर्म होता है, p ऑर्बिटल्स होता है ना जब, तो वो टाइट रहता है बॉन्ड। ओके, बट इन केस ऑफ sp3, देन sp3 इट इज लेस टाइटली बाउंड। ओके, हाँ, दे आर लेस अवेलेबल फॉर शेयरिंग विथ एसिड एंड हैज pyridine इज लेस बेसिक देन टर्शियरी amines। ओके, और एलिफेटिक amines। ओके, एलिफेटिक टर्शियरी amines। देखो, तो ये मतलब देख लो बेटा आप ना, कहाँ गया मेरा पेन, यहाँ, ये देखो, दिस आई हैव ड्रॉन स्ट्रक्चर टर्शियरी अमीन। तो इसका क्या है, लोन पेयर है, तो यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, दिस इज व्हाट, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, डन। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या है, डबल बॉन्ड है, और ये सॉरी डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे आया ना, इधर अंदर डबल बॉन्ड है, इसी के लिए ये क्या हो जा रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज। मतलब क्या ना, देखो ये नेगेटिवली चार्ज है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर, और अंदर का एनवायरमेंट क्या है, क्या है, हाँ रख बता, हाँ बता, पॉजिटिव है भाई। तो अंदर का एनवायरमेंट तुम्हें बेंजीन का एनवायरमेंट पॉजिटिव दिख रहा है, हाँ बेटा, डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन होता है, तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन से मतलब हाईली नेगेटिव है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन से ये नेगेटिव है और बाहर भी नेगेटिव, तो दोनों में एक तरह से रिपल्सन हो रहा है। यू अंडरस्टैंड नो, तो दिस इज द फीलिंग यू कैन अंडरस्टैंड। हियर sp2 हाइब्रिडाइज, इलेक्ट्रॉन अंदर भी है बाहर भी है, तो देयर इज ए रिपल्सन, तो नाइट्रोजन pyridine का बाहर की ओर रहेगा। ओके, तो दैट इज मोर एक्सपोज्ड, दैट इज मोर एक्सपोज्ड, यू हैव टू फील इन दैट वे। sp2 में क्या हो रहा है, हमारा जो डबल बॉन्ड्स इनसाइड है बेंजीन का, कहाँ गया, इसको बंद करना पड़ेगा, हाँ, जो डबल बॉन्ड इनसाइड है यू कैन सी, ओके, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और ये बाहर भी इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में एक आपस में टकरार होता है ना, देयर इज रिपल्सन, तो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर रहेगा, तो दैट इज मोर एक्सपोज। सो कभी भी एसिड डालोगे तो तुरंत रिएक्ट करेगा, दैट्स व्हाई pyridine is more basic so compared to others, but there is a but in case of you see what is there, amines, क्या है, amines, okay, tertiary amines, what is there is no electrons here, इलेक्ट्रॉन का लोचा ही नहीं है, ये तो और बाहर रहेगा। दिस इज हाईली अवेलेबल, क्या है ये हमारा हाईली अवेलेबल,
मतलब आप डालोगे बेस तो तुरंत रिएक्ट हो जाएगा। ये अगर 5 मिनट लेता है रिएक्ट करने के लिए, 1 मिनट में ये हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्ट इन केस ऑफ, जो जितना जल्दी दौड़ा दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। यू अंडरस्टैंड, हु इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, जो जितना जल्दी H+ दिया दैट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे हु इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, जो जितना जल्दी ले सका। हाँ या ना, तो ये जो है टाइम लेता है pyridine लेने के लिए, बट द अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन sp3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन इज मच मोर नेगेटिव कंपेयर टू सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ओके, यू रिमेंबर, समझ में आया नहीं? तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर की ओर ज्यादा रहता है, वो कुछ है ही नहीं उसमें, तो ये तुरंत ही लेता है, इसीलिए ये मोर बेसिक। ओके, सो sp3 एंड sp2 याद रखना फॉर एग्जाम पर्पज जब भी। ओके, मगर मैं आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। यस, अब देखो पायरोल के साथ कैसे कंपैरिजन है। pyridine is more basic than pyrrole because pyrrole is no left with any lone pair of electron, while pyridine having lone pair of electron और nitrogen atom are present. pyrrole ने क्या किया, मैंने आपको दिखाया था स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, आई बिलीव। पायरोल जो था उसका इलेक्ट्रॉन क्या किया, मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था। 2 लड़के हैं, मान लो ये पायरोल है, ये पायरोल है एक लड़का, ओके, और एक लड़का कौन था हमारा, यहां तक हाँ, और एक लड़का pyridine। ओके, पायरोल का जो लड़का है, पायरोल जिस फैमिली से बिलोंग करता है, माँ बाप गरीब है, मतलब खेती बाड़ी करते थे, बेचारे को बी फार्म करवाया, खेती बाड़ी किया, तो माँ बाप उम्मीद करते बेटा मेरा ग्रेजुएट बनेगा तो कहीं पे नौकरी करेगा तो 40-50 हजार रुपया लाएगा, तो हम जिंदगी अच्छे से जिएंगे, गुजारेंगे। यू अंडरस्टैंड, दे आर वेटिंग फॉर दैट। तो बच्चा पैसा कमाएगा तो घर में ही देगा। यू अंडरस्टैंड और नॉट, क्योंकि उसका माँ बाप तो नौकरी कर नहीं रहे, तो दे आर डिपेंडिंग। उसका सिस्टर होगा तो उसका शादी भी करवाएगा वो। यू अंडरस्टैंड, बट pyridine को देखो, जो pyridine है जिस फैमिली से बिलोंग करता है, उसके घर वाले क्या है, रिच फैमिली है, दे आर रिच, मतलब मदर और फादर दोनों के दोनों नौकरी कर रहे हैं। समझ में आया ना? तो pyridine क्या करेगा, घर में पैसा देने का जरूरत है क्या नाइट्रोजन को, उस लड़का को पैसे देने का जरूरत है, नहीं देने का जरूरत है, तो वो तो मजे करेगा, पार्टी करेगा, हर दिन पार्टी उसका। समझ में आ रहा है या नहीं, ये कॉन्सेप्ट समझो। तो पायरोल इज डिपेंडेंट, पायरोल अपना घर चलाने के लिए, ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा था, आई एम मनी जो बोल रहा हूं ना, ये इलेक्ट्रॉन को बात कर रहा हूं, क्या इलेक्ट्रॉन के बारे में, ये दे रहा है, तो इट इज इन शेयरिंग विद द फैमिली। ए मॉलिक्यूल एरोमेटिसिटी फुलफिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसके पास बचा, महीने का 50,000 आता था, घर में दे दिया और कुछ बचा नहीं, खत्म। समझ में आया? तो दैट्स व्हाई दिस इज, उसके पास नहीं है तो आप हाइड्रोजन डालोगे तो कैसे रिएक्ट करेगा, तुम उसको दिखाओगे गुलाब जामुन ड्रेस नए नए तो खरीद सकता है नहीं। और जब pyridine को दिखाओगे, अरे ये है दे दे मुझे, मेरे पास पैसा, तुरंत ले लेगा, ये खरीद लेगा। यू अंडरस्टैंड, सो दैट्स व्हाई pyridine इज मोर बेसिक। तो the electron availability on nitrogen of pyridine is available for accepting the hydrogen if you add the acid. Okay, that's why it is basic in nature. Okay, but in case of pyrrole, the rate of reaction is very slow. Okay, acceptance is very slow, that's why it's less basic. Okay, is it clear? I think समझ में आया? हाँ, सबको समझ में आया नहीं आया? या चलो आगे बढ़ते हैं। इले देखो, अब देखो मैंने आपको बताया था रिएक्शंस के बारे में। ओके, तो दिस इज pyridine, आप ड्रॉ करो pyridine का स्ट्रक्चर, एरो दो क्या क्या रिएक्शंस करता है pyridine। देखो हमने पायरोल फ्यूरन थायपिन का किया था, क्या क्या रिएक्शंस देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और फ्यू नेम रिएक्शंस। ओके, हाँ ये क्या देता है बेटा, ये भी हमारा ईपीएस देगा, क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या, और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऐसे 4 तरह का एरो करना, 4 दिशा में आप, फाइन। ठीक है, और रिएक्शंस लिखते जाना। न्यूक्लियोफिलिक के लिए आप इधर से लिखो, ये दोनों साइड से लिखो और बीच में थोड़ा सा आएगा। ओके, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फाइन नो। लेट्स सी देन, देखो pyridine is very less reactive toward the electrophilic substitution reaction. Why?
वाई pyridine इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। आंसर देखो, इट शोज नाइट्रोजन, देखो इट शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक नाइट्रेशन सल्फोनेशन, ओके, इन ड्रास्टिक कंडीशन। क्या बोल रहा है? ड्रास्टिक मतलब वेरी हार्श कंडीशन, मतलब टेम्परेचर देना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट देना पड़ेगा। क्लियर? ओके। इट डज नॉट अंडरगो फ्रीडिलक्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडिलक्राफ्ट एसाइलेशन अल्काइलेशन करने के लिए बेटा आपको एक एसिड देना पड़ता है, लुइस एसिड दो या कोई भी एसिड देना पड़ेगा। ओके, एसिड देंगे तो नाइट्रोजन तो बैठा हुआ है, प्रोडक्ट दिखाएगा तो खरीद लेगा, तो एच तो पकड़ लेगा तो पिरिडिनियम बन जाएगा। पिरिडिनियम बन जाएगा तो 2 नंबर पे इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएगा। पायरल फ्यूरन थियोथाइफिन में 2 नंबर पे क्यों जाता था? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन देता था तो 2 नंबर पे देता था। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर इन द 2 नंबर पोजीशन। ओके, मगर यहां पे क्या हो रहा है? अब चार्ज बन जा रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज 3 नंबर पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। ओके, instead of this substitution occur at 3 position. Clear? तो write down this. pyridine gives electrophilic substitution reaction in कितना नंबर पोजीशन? 3 और बीटा पोजीशंस। ओके, द लो रिएक्टिविटी ऑफ pyridine towards reaction due to the following reasons. ये क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम में। वाई pyridine, जो क्वेश्चन बोला मैंने, ओके, हाँ, सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in which position pyridine show electrophilic substitution reaction, justify your answer, ऐसे ही पूछ सकता है। in pyridine 6 electron forming the delocalized pi electron cloud which are contributed one each by the 5 carbon atom with the double bonds. Okay, since nitrogen is more electronegative atom than carbon, so it attracts the delocalized pi electron cloud towards itself. क्या बोला? नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ओके, तो वो क्या करेगा? अपना और खींचेगा। हाँ है ना, जैसे कि एक लड़का है, लड़की था, मैंने एग्जाम्पल दिया था। लड़की अगर अमीर जादी है और लड़का अगर गरीब है, तो लड़का को जो बोलेगा सुनेगा, वो समझ में आएगा, नहीं तो ना उंगली में नचाएगा उसे। तो ऐसे pyridine करता है, क्योंकि चारों के चारों, जो पांचों के पांचों कार्बन क्या है? कार्बन है, और ये नाइट्रोजन है, तो अकेला वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो जो डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन रहता है वो अपने और खींच के रखता है। समझ में आया ना? हाँ, since nitrogen is more in the atom, it attracts delocalized pi cloud towards itself. This causes the carbon of pyridine rings to have lesser electron density than the deactivates the pyridine ring towards electrophilic source. क्या बोला? इसीलिए ये क्या करता है? अपना और जब ले लेता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया, घट रहा है या नहीं घट रहा है? ओके, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, तो नाइट्रोजन अगर नेगेटिव हुआ तो कार्बन क्या हो जाएगा? 2 नंबर पॉजिटिव, तो तीसरा कार्बन क्या होगा? नेगेटिव। इसीलिए तीसरे पे इलेक्ट्रोफिलिक होता है, 2 पे नहीं होगा। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, वो देखेगा दूसरों को तो खींच लेगा अपना। ओके, तो खींचेगा तो खुद नेगेटिव हो जाएगा, तो सेकंड कार्बन क्या होगा? पॉजिटिव, तो थर्ड कार्बन नेगेटिव। ओके, द अनदर फैक्ट व्हिच डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ pyridine इज एसिड कंडीशन। बेटा लिखो 2-2 लाइंस। यहाँ पे कहानी नहीं सुन रहे हो तुम लोग, हाँ, कि पी ले रहे हो देख के, कंप्यूटर नहीं हो तुम। रजनीकांत वाला वो मूवी जो था वो नहीं हो तुम, अपने आप को मत सोचो। राइट डाउन इट। Then other fact which decrease the reactivity of pyridine is acidic condition in which electrophilic substitution reaction occur nitration sulfonation. In acidic condition, the nitrogen atom of pyridine gets protonated or form pyridinium. मैंने बताया था, having a positive charge on nitrogen atom. This positive charge nitrogen atom withdraw electron from carbon atom of pyridine rings more strongly and make it difficult to electrophilic substitution. ओके ना? ठीक है ना? तो ये pyridinium बन जाता है। ये दूसरा रीजन है। क्या रीजन है? ये दूसरा रीजन है, सेकंड रीजन। ओके, सॉल्ट बन जाता है। pyridinium बन जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग मोर हो जाता है। ठीक है ना? देखो तो सल्फोनेशन क्या, कौन सा रिएजेंट दे रहा है? सॉरी, नाइट्रेशन के लिए KNO3H2SO4, क्या? हार्श कंडीशन एंड टेम्परेचर। ठीक है, NO2+ जनरेट होगा तो 3 नंबर पे होगा। ब्रोमिनेशन किया तो देखो, ब्रोमिनेशन भी टेम्परेचर चाहिए। ब्रोमीन 3 पोजीशन में, 3 और 5 पोजीशन में मिक्सचर।
सल्फोनेशन, सल्फोनेशन भी आपका 3 पोजीशन। क्लियर? नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन आर इन द 3rd पोजीशन। नो फ्रीडिल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज द डिफरेंस ऑफ पायरोल एंड पायरोल फ्यूरन थायोपिन विथ pyridine। ओके, देन लेट्स गो टू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस को प्यार करेगा। न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस को प्यार करेगा। न्यूक्लियस किसका है? न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव को प्यार करेगा। पॉजिटिव को जो प्यार करता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स आएंगे। क्या आएंगे? न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिवली चार्ज। देखो, तो ड्यू टू लेस रिएक्टिविटी ऑफ pyridine अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट कौन सा पोजीशन में होता है? 2 and 4। प्लीज राइट डाउन। बट 2 पोजीशन इज मोर अफेक्टेड देन पोजीशन 4। क्यों होता है मैं आपको जस्टिफाई कर रहा हूं। आपने लिख दिया, बस इतना याद रखो। हिंट्स क्या लिखना है या एग्जाम में याद रखने के लिए? pyridine इलेक्ट्रोफिलिक 3 नंबर पोजीशन। कौन कौन सा रिएक्शन? हेलोजिनेशन, दैट इज ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन। ओके, नो फ्रीडिल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइलेशन। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ गया। देखो इन्होंने क्या लिया पहले, देखो इन्होंने लिया, क्या लिया है इन्होंने? NaNH2। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम अमाइड, सोडामाइड। क्या बोलते हैं? pyridine में अगर सोडामाइड ट्रीट किया, क्या किया? pyridine है, दांत खुल रहा है, लिख चुप से बैठ गए, इडियट कहीं का। यार पढ़ा रहा हूं यार, ध्यान कहां पे, सोच कहां पे, क्या सोच रहा है? देन क्लास आए हो, क्यों आए हो भाई? कहानी सुना रहा हूं क्या? नींद आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? बताओ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अभी तक बताया जितना समझ में आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? आया ना? हाँ, तो प्लीज राइट डाउन दिस थिंग। जो पढ़ा रहा हूं वो एटलीस्ट लिखो। यहाँ पे 50 मिनट पढ़ने आते हो, सोने नहीं आते हो, नहीं तो लाठी मार के पढ़ाना पड़ेगा फिर। देखो, तो मैंने क्या बोला कि देखो इसका जो इलेक्ट्रॉन था, मैंने क्या बोला बेटा आपको? देखो, हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये नेगेटिव है एक तरह से, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। ये नेगेटिव क्यों है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका सराउंडिंग क्या है? पॉजिटिव है, मगर ये एक दारू वाला है। क्या है? दारू वाला। याद रखिए, ये सारे के सारे अच्छे बच्चे हैं, कार्बन कार्बन सारे के सारे अच्छे बच्चे हैं, और ये क्या है? दारू वाला। याद रखना। ओके, तो वो तो ऐसे ही मांगेगा, लूटेगा। लूटेगा या नहीं लूटता है? लूटते हैं ना, जानते हो, तुम्हारा हॉस्टल जहाँ रहते होगे तो ऐसे ही करते हैं, भाई दे देना थोड़ा पैसा, और कभी देगा भी नहीं उधार। ओके, हर वक्त मांगेगा तुमसे। तो ये इसका काम यही है, उधार वाला है ये। ओके, तो ये अगर नेगेटिव है, हाईली नेगेटिव होता है ये ऐसे इंसान, तो ये पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ओके, और यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक। तो अब देखो, ये हम रिएजेंट को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो Na+ NH2 माइनस, तो ये प्लस है तो NH2 आके यहाँ पे रिएक्ट कर लेगा या नहीं करेगा? तो देखो NH2 आके, और ये इसके पास नेगेटिव है तो सोडियम जाके चिपक गया उसके पास। समझ में आया नहीं? सोडियम जाके यहाँ पे चिपक गया, तो हम अमोनिया डाला तो ये चल गया, यहाँ से अमोनिया ट्रीट करने से सोडियम निकल जाएगा। ओके, और 2 अमीनो pyridine बन जाएगा। क्या बनेगा? क्लियर? ओके, दिस इज नोन एज छिछिबाबाइन रिएक्शन। छिछिबाबाइन रिएक्शन क्या है? नेम रिएक्शन है ये, याद रखना। कितने सारे नेम रिएक्शन हो गया आपका? ओके, ओके ना? दिस इज छिछिबाबाइन सिंथेसिस। pyridine का सिंथेसिस के लिए कौन सा सिंथेसिस था? हांस सिंथेसिस पढ़ा हमने। क्या? हांस। pyridine में हमने 2 सिंथेसिस नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, एक हांस सिंथेसिस, दूसरा छिछिबाबाइन सिंथेसिस। ओके, डन? इतना समझ में आ गया आपको? ओके, चलो अब आगे जाते हैं। दिस इज द मैकेनिज्म पार्ट। तो NH2 जाके यहाँ रिएक्ट किया, ये ऐड हुआ, ये सेम हुए तो मैकेनिज्म है, फिर घूमता रहेगा इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा 2 अमीनो pyridine। ओके, फिर कभी देखेंगे। फिर देखो तीसरा, फिर मोर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐड करो एग्जाम में। ओके, क्या होगा? देखो पहले इसको समझने के लिए, आप KOH है तो KOH में क्या आएगा? K+ OH माइनस। यस और नो? तो OH माइनस क्या करेगा? यहां पे जाएगा, तो देखो OH भी जा सकता है और डबल बॉन्ड O भी हो सकता है, आपको तो पता है।
अगर डबल बॉन्ड O देंगे तो डबल बॉन्ड यहां से हट जाएगा नाइट्रोजन से। यहां पे अगर हम OH भी लिख सकते हैं हम, क्या OH भी, तो क्या 2 हाइड्रोक्सीपीरिडिन क्या बनेगा, नहीं तो 2 पिरिडोन क्या बनेगा, 2 पिरिडोन। आपको जो अच्छा लगता है आप वो स्ट्रक्चर लिखना, दैट इज राइट आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट रिएजेंट इज, एक पिरिडिन में आप चारों रिएक्शन लिखना, बता रहे हैं। हाँ, आप ऐसे बैठ के लिखते रहोगे तो खत्म नहीं। पिरिडिन का एक ड्रॉ किया, सेंटर में एरो देके चारों ओर लिखना चाहिए आपको। पिरिडिन सेंटर में लगाओ, चारों ओर एरो दो, 4 रिएक्शन से। ओके, पहला रिएक्शन चिचिबाबाइन गया NaNH2, दूसरा KOH गया, तीसरा फिनाइल लिथियम। फिनाइल लिथियम मतलब C6H5Li। मैंने क्या बोला, कोई भी मॉलिक्यूल अगर मेटाल के साथ होगा, मेटाल विल ऑलवेज पॉजिटिव। तो लिथियम इज पॉजिटिव, कार्बन इज नेगेटिव, इसीलिए देखो फिनाइल ग्रुप आके चिपक गया, 2 फिनाइल पिरिडिन बन गया या नहीं बना। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, नेक्स्ट देखो रिएजेंट क्या है, ब्यूटाइल लिथियम, सेम ब्यूटाइल ले लिया। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस एंड, सॉरी लिथियम इज प्लस एंड दिस इज माइनस, तो इसीलिए ब्यूटाइल ग्रुप भी आ गया। ओके, ऐसे ही और एक रिएजेंट है बेटा, यहां पे दिया नहीं है, क्या होगा, RMgX, क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी दे सकते हैं, यस और नो? तो क्या होगा, ग्रिग्नार्ड में Mg प्लस R माइनस, तो यहां पे कौन आएगा, R आ जाएगा, तो R घुस जाएगा यहाँ पे। कोई भी अल्काइल घुसा सकते हो, इथाइल मिथाइल जो भी चाहिए आपके पास, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है यू कैन डू इट इन केस ऑफ पिरिडिन ऑल्सो। इज इट क्लियर? तो ये भी ऐड कर लो, यहां पे लिखा नहीं है, मैंने बता दिया आपको, RMgX लिखो और ये ऐड कर दो। ओके, हाँ नहीं बेटा नहीं, आप याद रखना, ये दिखती R हमें क्या चाहिए, Mgx विल बी एक कंपाउंड, ये क्या हो जाएंगे, दिस विल बी 1 और दिस इज द दिस। ओके, हेलोजन लग रहा है तुम्हें माइनस, बट उसको इमिट करो, ये सॉल्ट बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। RMgX मतलब क्या, जब R हट जाएगा मैग्नीशियम का वैलेंसी फिर लगेगा, तो Mgx, तो दैट विल बी बिहेव एज ए सॉल्ट, और ये एक तरह से हो जाएगा, तो R विल बी माइनस, Mg विल बी प्लस। ओके, ठीक है, ये याद रखना। डन, न्यूक्लियोफिलिक हो गया, इतना समझ में आ गया आपको? हाँ, देन रिडक्शन रिएक्शन देखो, तो मैंने हमेशा आपके लिए बोला है, रिडक्शन क्या, कोई भी मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन डालेंगे तो दैट्स ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट विल रिड्यूस। तो ऐसे ही पिरिडिन लिखो और 4 एरो डालो, सेंटर में लिखो पिरिडिन और चारों साइड 4 एरो डालो और लिखो एक एक पिरिडिन का क्या रिएक्शन। बार बार कितना पिरिडिन ड्रॉ करोगे आप, यस और नो? जैसे कि यहां पे मैंने पिरिडिन लिखा, देखो यहां पे पिरिडिन लिखा है, एक रिएक्शन यहां आया तो दूसरा आप इधर लिखो, तीसरा नीचे लिखना और चौथा ऊपर की ओर लिख देना, है ना? 4 नेम रिएक्शन से 4 रिडक्शन रिएक्शन है। प्लेटिनियम और सोडियम इथानॉल देते हैं तो कंप्लीट रिडक्शन, पाइपरिडिन बन जाता है, यस, ठीक है। और अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रेड फास्फोरस देते हैं और हीट करते हैं तो बॉन्ड टूट जाता है और अल्केन बनता है। तो दिस इज अल्केन सिंथेसिस। जब BP202T में पढ़ा था तो यू कैन राइट डाउन दिस सिंथेसिस ऑल्सो, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन था ना, तो आप ये लिख सकते थे, यस और नो? दिस इज एन अल्केन ना, पेंटेन बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है या नहीं बन रहा? ये अभी चाहिए तुम्हारा जूनियर्स को BP202T में, राइट? सो नेक्स्ट नेम रिएक्शन रिडक्शन इज द बिर्च रिडक्शन। बिर्च रिडक्शन मतलब बीच वाला रिडक्शन। क्या है? बीच वाला रिडक्शन। देखो मैंने आपको बताया था बार बार, पिरिडिन में देखो, पिरिडिन में क्या है, यहां पे एक डबल बॉन्ड है, यस और नो? यहां पे एक डबल बॉन्ड है और यहां पे एक डबल बॉन्ड है, यस नो? तो देखो जब रिडक्शन हो रहा है तो ये कार्बन का सेंटर कौन है, ये वाला आया ना, ये वाला यहां से रिडक्शन हो रहा है, देखो हाइड्रोजन यहां पे ऐड हो रहा है, बीच वाला रिडक्शन मतलब बीच से काटोगे पिरिडिन को, जो सेंटर होगा वहां पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड क्या होगा, 2 साइड आ जाएंगे। ओके, तो इसमें रिएजेंट क्या होता है, सोडियम एंड अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ इथानॉल। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिएजेंट फॉर बीच रिडक्शन। पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट में, एमफार्म का एंट्रेंस टेस्ट में, जीपैड में, नाइपर एंट्रेंस टेस्ट में, ड्रग इंस्पेक्टर में, हर कोई जगह पे पूछता है बेटा। कोई फार्मेसी का फार्मासिस्ट एग्जाम देने दोगे, केमिस्ट्री पूछेगा तो ऐसे नेम रिएक्शन पूछते हैं। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है।
ठीक है ना बेटा, ब्रिज रिडक्शन हो गया। और देखो नहीं, आपने बोला कि नहीं सर मुझे ना 2 नंबर का रिडक्शन करना है, कहाँ पे 2 नंबर का, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोगे ईथर का प्रेजेंस में तो आपका 2 नंबर पोजीशन में रिडक्शन होगा। क्लियर? तो दिस इज 1,2 डाइहाइड्रोपिरिडिन। और ये जो ब्रिज रिडक्शन था क्या था, 1,4 डाइहाइड्रोपिरिडिन। ये 4 है, ये 2 है। ठीक, क्लियर? और ऐसे भी कुछ हो गए 1,3 कर सकते हो जो कि हमने नहीं पढ़ा, ऐसे भी रिएजेंट मिलेंगे कि आपको 1,3 भी कर सकोगे। दैट इज द सिलेक्टिव फॉर 3 पोजीशन ऑल्सो। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? हमने अभी तक इलेक्ट्रोफिलिक देखा, न्यूक्लियोफिलिक देखा एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब नाउ यू विल सी द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? देखो, pyridine इज ऑक्सीडाइज यूजिंग द पर एसिड, पर बेंजोइक एसिड, मतलब 3 ऑक्सीजन है। ओके, पर बेंजोइक, कहीं पे पर मतलब पेरोक्साइड हो गया, यस सर नो। तो ये पर बेंजोइक एसिड में तो pyridine एन ऑक्साइड होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन तो हाईली रिएक्टिव होता है ना pyridine का, उसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन को भी ले लेता है, pyridine एन ऑक्साइड फॉर्म करता है। आई बिलीव दिस इज द एंड ऑफ द रिएक्शन। और एक है, देखो फिर रेडिकल रिएक्शन, बस इतना ही याद रख सकते हो, नहीं तो आप आगे भी देख सकते हो। pyridine में अगर पर बेंजोइक एसिड इस तरह का हम रिएजेंट दिए, क्या pyridine इन एब्सेंस ऑफ एसिड रिएक्ट विद बेंजोइल पेरोक्साइड, दिस इज नोन एज बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में अगर रिएक्ट करेंगे तो इट विल फॉर्म 2 फिनाइल 3 फिनाइल एंड 4 फिनाइल मिक्सचर देगा। क्या देगा? मिक्सचर। बट अगर हमें एक पर्टिकुलर कंपाउंड चाहिए, क्या चाहिए? 2 नंबर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे? pyridine लेंगे, एसिड का प्रेजेंस में क्या देंगे? पर बेंजोइक देंगे। क्या देंगे? पर बेंजोइक देंगे। तो क्या हो जाएगा? pyridinium हो जाएगा। pyridinium हो जाएगा मतलब प्लस हो गया, प्लस हो जाएगा तो ये क्या होना चाहिए? गरीब हो गया, ये गरीब बन गया थोड़ा सा, ये माइनस था, ये प्लस होगा ही होगा मगर थोड़ा सा गरीब बन गया। ओके, हाँ, तो ये कितना पोजीशन में? 2 फिनाइल pyridine बनेगा। याद रखें, कितना नंबर पे जाएगा? 2 नंबर पे। सो दिस इज अ सिलेक्टिव वे यू कैन फॉर्म द कंपाउंड। 80% मेजर प्रोडक्ट विल बी द 2 फिनाइल pyridine। ये कभी कभार पूछता है, ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। डन? सो दिस इज रिगार्डिंग द केमिकल्स रिएक्शंस ऑफ pyridine। सो वी हैव स्टडीड व्हाट रिएक्शंस। सो pyridine का बेस्ट रिएक्शन क्या है हमने देखो आप पढ़ाया, पायरोल फ्यूरन थायोपिन। सो व्हाट इज द डिफरेंस यू कैन गेट, कि हमने यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना, पायरल फ्यूरन थायोपिन नहीं देते हैं। इज इट क्लियर? ये डिफरेंस है। तो आपका डिफरेंस का कितना बन गया? 4 कैटेगरी बन गया आपका, हाँ बन गया ना? ठीक है, हाँ, तो ठीक है, इतना बस। आप यहाँ पे देखोगे क्या? यूज ऑफ pyridine, दिस इज यूज्ड एज ए रिएजेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट ड्रग मॉलिक्यूल, पॉलीमर, वेटनरी प्रोडक्ट्स, industrial products, reagents, and this may be prepared for synthesis of different drug molecules like antihistaminic, anticholinergic, antacid, anti-hyperlipidemic, anti-tuberculosis, antifungal, anti-HIV। तो आप ये बार कौन सा पढ़ रहे हो? ये पढ़ रहे हो एंटीहिस्टामिन। तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर हो क्लोरफेनामिन, फेनामिन एंड मेपेनामिन। ओके, ये स्ट्रक्चर आप याद रखो। कोलिनर्जिक में ट्रोपिकामाइड, यस और नो, ये 2 आप याद रख सकते हो, आपका काम का चीज है। ये पढ़ोगे एंटासिड, हाँ है क्या सिलेबस में? तो अगर होगा तो देख लेना। ओमिप्राजोल तो खाते हो भाई आप लोग, तो उसका बेसिक रिंग क्या है? ठीक है ना, ओमिप्राजोल, लांसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, एस्मोप्रोजोल में हमारा बेसिक रिंग pyridine का है। क्लियर? तो आइडिया मिला ना? हाँ, तो इसका यूज क्या हो रहा है pyridine का? pyridine इज नॉट यूज्ड एज ए ड्रग, इट्स डेरिवेटिव may be used as it। okay, is it clear? so this anti diabetic देखो कितने सारे यूज है आपका, आप अपना जो भी पसंदीदा हो आप उसको यूज कर लेना। is it clear? fine, तो मैं यहाँ पे इसको फिनिश कर रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी क्विनोलिन। ओके, नेक्स्ट क्लास मतलब कल है, कल हमारा क्लास में मैं इसका पढ़ाऊंगा क्विनोलिन का। ओके, डोंट मिस दिस थिंग, जो मिस किया मैं रिकॉर्ड कर दिया क्लास को। ओके, उनको शेयर कर दूंगा, देख लेना तुम खुद। ठीक है, ये क्विनोलिन आप पढ़ोगे। हाँ, क्विनोलिन आइसो क्विनोलिन आर सेम। अगर क्विनोलिन आप सीख गया तो आइसो क्विनोलिन भी सीख जाओगे। तो आई बिलीव जब तक क्लास हो रहा है कल तक तो होगा आई बिलीव। हाँ, तो कल तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे क्विनोलिन। ओके फाइन, चलो।
ठीक है ना।